السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے فیفا ویمنز ورلڈ کپ کے حوالے سے، اور ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین فی الوقت آپ کو واپس یہ چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے 10 سال مکمل۔ اسلام آباد میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور چین کے نائب وزیراعظم ہی لینفینگ کی شرکت۔ دونوں رہنماؤں نے یادگاری گلوب کو روشن کیا۔ 100 روپے کے یادگاری سکے کا اجرا۔ سی پیک کے حوالے سے ڈاکومنٹری اور سدا بہار دوستی کے حوالے سے نغمہ بھی جاری۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان اور خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ خصوصی اقتصادی زونز کے قیام میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ گوادر پورٹ آئندہ آنے والے دنوں میں مصروف ترین بندرگاہ بن جائے گی۔ مشکل وقت میں چینی قیادت اور عوام کی جانب سے مدد کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ توانائی بحران پر قابو پانے کے بعد برآمدات میں اضافہ ہوا۔ وقت آ گیا ہے کہ چین کے تجربات سے استفادہ کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ سی پیک سے چین اور پاکستان کی دوستی کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ توانائی، زراعت، ریلوے، آئی ٹی سمیت مختلف منصوبے شروع کیے گئے۔ سڑکوں کا جال بچھایا گیا۔ صنعتی ترقی کے دور کا آغاز ہوا۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان سے دوستانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم ہی لینفینگ۔ پاک چین دوستی شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے بلند۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لینفینگ کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد کا دورہ پاکستان۔ سدا بہار دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ چین پاکستان سدا بہار دوست اور آہنی بھائی ہیں۔ دونوں ملکوں کی دوستی میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط کے بعد سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لینفینگ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مرکزی دروازے پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں سی پیک سمیت دو طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی امور اور باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کی حمایت کا عزم۔ چینی نائب وزیر اعظم کی پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی اور خوشحالی میں مستقل تعاون کی یقین دہانی۔ گراں قدر خدمات کا اعتراف۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لینفینگ کے لیے ہلال پاکستان کا اعزاز۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے معزز مہمان کو اعزاز عطا کیا۔ تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ وزیر اطلاعات کی نگراں وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے خبروں کی تردید۔ نگراں وزیر اعظم کا تقرر آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس سلسلے میں قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ مشاورتی عمل مکمل ہونے پر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ مضبوط علاقائی روابط۔ بینک آف چائنا کی اسلام آباد میں دوسری برانچ کا قیام۔ مالیاتی اداروں کے اشتراک سے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ چین کے تعاون سے پاکستان مشکل دور سے نکل آیا ہے۔ سی پیک خطے اور دنیا کا معاشی مستقبل ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔
स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 2 साल बाद 100 इंडेक्स 48,000 की सतह उबूर कर गया। मार्केट 957 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 48,034 की सतह पर बंद। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखने का फैसला। आने वाले महीनों में महंगाई में कमी मुतवक्के है। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 8.2 अरब डॉलर की सतह पर हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और तिजारती खसारे में कमी बाइसे इत्मीनान है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद। मादनियात की दुनिया में हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम। पाकिस्तान मिनरल समिट कल इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। डस्ट टू डेवलपमेंट समिट का मकसद सरमायाकारों को राग़िब करना है। पाकिस्तान में मादनियाती मिट्टी की कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर है। अब हम मिट्टी नहीं तरक्की बेचेंगे, वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक। पीटीआई हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा करते हुए कौमी मंसूबों को ताखीर का शिकार किया। मौजूदा हुकूमत ने 15 माह के दौरान 5,000 मेगावाट से जायद बिजली सिस्टम में शामिल की। कीमत में इजाफे का इत्तलाक 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले 2 करोड़ 10 लाख घरेलू सारिफीन पर नहीं होगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। बाजोड़ धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर की जख्मियों की आयादत। मासूम इंसानों को कत्ल करने वाले पाकिस्तान, आलम इस्लाम और पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। आलमी बिरादरी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के वाक़े के सोग में CPAC की 10 साला तक़रीबात सादगी से मनाने का फैसला। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। चेयरमैन PTI 4 घंटे अदालत में गुजारने के बावजूद 35 सवालों में से किसी का भी जवाब न दे सके। चेयरमैन PTI की 342 का बयान कलम बंद न करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजिम को कल दोबारा तलब कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जम्मू में एक और बेगुनाह नौजवान शहीद। मकबूजा वादी में कोबरा कमांडो बटालियन की तैनाती का फैसला। सूरत हाल मामूल पर आने के मोदी हुकूमत के दावों की कलई खुल गई। रूस के यूक्रेनी इलाकों पर हमले, फौजी तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। डोनेस्टिक, लिमान और मशरकी महाज पर भी यूक्रेनी हमले नाकाम बनाने का दावा। मॉस्को पर हमला आवर 3 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी अरब की मेजबानी में अगस्त में यूक्रेन की सूरत हाल पर मुज़ाकरात मुतवक्के। और पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने पेरिस ओलंपिक्स में जगह बना ली। उस्मान खान ने आयरलैंड में होने वाले मुकाबलों में क्वालिफाइंग मयार हासिल कर लिया। उस्मान खान ने मुसलसल दूसरी मर्तबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन ने सदाबहार दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने के लिए मुख्तलिफ शोबों में 6 मफाहमती याददाश्तों और दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे नायब वज़ीर आज़म ही लीफिंग भी इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि 10 साल कबल शुरू होने वाले CPAC मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत और IT के शोबे में ताउन से पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा होगा। इंतहाई अहमियत के हामिल ML1 और कराची सर्कुलर को मिलकर कामयाब बनाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। के नायब वजीर आजम ही लाइफिंग अपने आला सतह वफ्द के हमरा वजीर आजम हाउस पहुंचे तो वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरकजी दरवाजे पर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और दोनों अतराफ से खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया गया। समंदरों से गहरी और हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ साथ मजीद गहरी और हर मुश्किल घड़ी में
तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए मजीद बुलंदियों को छू रही है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी, दो तरफा इक्तसादी और मालियाती ताउन समेत दो तरफा ताल्लुकात में मुतअद्दिद पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने ही लाइफिंग को चीन के नायब वजीर आजम के ओहदे पर फाइज होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब और दरपेश मौजूदा माशी चैलेंजेस, बिलखसूस IMF के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने जैसे मुश्किल मरहले में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीन के नायब वजीर आजम ने दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक में तौसी पर जोर दिया और पाकिस्तान की मुआशी और इक्तसादी तरक्की में चीन के मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने CPEC की पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मुआशी और इक्तसादी तरक्की में मरकजियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि CPEC की 10 साला सालगिरह मंसूबे को असर नौ तौसी देने का सुनहरी मौका है। उन्होंने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को ज़रूरी बरामदात बढ़ाने में पाकिस्तान की दिलचस्पी से आगाह किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 6 दस्तावेजात पर दस्तखत हुए। CPEC के हवाले से मुश्तरका ताउन कमेटी और CPEC के फ्रेमवर्क के तहत माहिरीन के तबादले के लाहे अमल की दस्तावेज पर मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल और चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन के वाइस चेयरमैन ने दस्तखत किए। पाकिस्तान से चीन को खुश्क मिर्चों की बरामद से मुतल्लिक प्रोटोकॉल पर दस्तखत सेक्रेटरी वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक और पाकिस्तान में चीन की नाज़िमुल अमूर ने किए। दोनों मुल्कों ने शाहराह कराकरम के दूसरे मरहले की फिजिबिलिटी स्टडी की हतमी रिपोर्ट से मुतल्लिक दस्तावेज पर भी दस्तखत किए। पाकिस्तान और चीन के सिफारती चैनल्स के जरिए सनती वर्कर्स के तबादलों के प्रोग्राम और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल ML1 मंसूबे को आगे बढ़ाने पर पहले ही इत्तफाक किया जा चुका है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन की दस्तावेजात पर दस्तखत दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताउन का रोड मैप है। Today we can claim that under CPEC more than $25 billion worth investment took place in power sector, road infrastructure, hydropower and public transport. We will undertake second phase of CPEC under a new model. It will be between B2B. It will be investments in agriculture, in information technology. We are friends, all-weather friends, are in brothers and will not tolerate any kind of obstacle in its way. वजीर आजम ने चीन के नायब वजीर आजम ही लाइफिंग को खसूसी नुमाइंदे की हैसियत से पाकिस्तान भेजने और यकजहती के इजहार पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। We are absolutely ready to contribute towards President Xi Jinping's vision of shared destiny of progress and prosperity. ML1 is a very important project. Karachi Circular Railway System is a very important project. And I have no doubts that together in time to come, we will successfully achieve these projects and many other and make Pakistan stand on its own feet through sacrifice, hard work and untiring efforts. अक़वाम आलम में पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक मुनफरिद है। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों मुल्कों की दोस्ती और ताउन का ये रिश्ता मजीद गहरे से गहरा होता चला जा रहा है। CPEC दोस्ती के इस रिश्ते का एक अमली नमूना है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि CPEC का दूसरा मरहला पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। इस्लामाबाद में इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर CPEC के जरिए फासलों को समेट रहे हैं। गवादर पोर्ट मुस्तक़बिल में मसरूफ़ तरीन बंदरगाह होगी। तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC मंसूबे के तहत पाकिस्तान में तवानाई के हसूल समेत ज़राए आमदोरफ्त, सनती और ज़राई शोबे में भी तरक्की हुई। दूसरे मरहले में तरक्याती जोन बनाए जा रहे हैं जिससे तरक्की के मनाजिल तय होंगी और खित्ते में रवाबित मजबूत होंगे। Now we are entering the second phase of CPEC, which is even more interesting and extremely helpful in promoting investments, progress and prosperity in Pakistan and also in the region, which is growth corridor, special economic zones, livelihood corridor, innovation corridor, green corridor and openness and connectivity corridor, which
already has been established between North and South will extend in many ways to include the entire region and also other parts of the world. वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है, जिस पर चीन के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी कौम में बहुत टैलेंट है, बहुत जल्द पाकिस्तान को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। Pakistan soon one day will stand on its own feet. We won't have to beg and borrow. We will generate our own resources through untiring efforts as the Chinese have done. We will alleviate poverty as China did. Will provide jobs, and that will be the biggest gift we can offer to our ancestors. वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाने में अहम किरदार अदा किया। A unique relationship where the entire spectrum of Pakistani nation, people from all walks of life, all political parties, all institutions, they are committed to this great friendship. This nation, 220 million people of Pakistan, all political parties, political leadership, military leadership, judiciary, doctors, engineers. On one thing, there is total unanimity that China is our true and most sincere friend. चीन के नायब वजीर आजम ही लिफेंग ने कहा कि सी पैक के 10 साला तकरीब में शिरकत करके खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। सी पैक दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम मंसूबा है और ये मंसूबा बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है। China-Pakistan cooperation and CPEC in the next decade will make new progress in the next decade, and China-Pakistan relations will embrace an even brighter future. May Pakistan enjoy prosperity and its people happiness. May China-Pakistan friendship be everlasting. Chin-Pak dosti zindabad. उन्होंने कहा कि सी पैक का दूसरा मरहला खित्ते में रवाबित बढ़ाने में माविन मददगार साबित होगा। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होने वाली खुसूसी तकरीब में सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर 100 रुपए का यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। पाक चीन राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमद के बाद दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए, जिसके बाद पाक चीन दोस्ती के लाजवाल नगमे को एक नए अंदाज में मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने पेश किया। इनके हमरा नन्हे फनकारों ने खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबात का बाकायदा आगाज जगमगाते ग्लोब पर हाथ रखकर किया तो पूरे हाल में हर सू रोशनियां बिखर गईं। पाक चीन राहदारी मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री पेश की गई, जिसमें इससे मुतल्लिका मुख्तलिफ मंसूबों पर तफसील से रोशनी डाली गई। मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर 100 रुपए का यादगारी सिक्का जारी किया गया। सी पैक के हवाले से चीन की जानिब से तैयार किए गए डिजाइन पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दस्तखत किए। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लीफेंग ने इलाकाई मलबूसात ज़ेबेतन किए फनकारों के साथ ग्रुप फोटो बनवाया और नन्हे फनकारों को दाद दी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लीफेंग को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ और दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के एतराफ़ में हिलाल पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया। ईवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उन्हें अवार्ड दिया। तफसील जानेंगे शाहरुख शफी की रिपोर्ट में। ईवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी कामीना के अरकान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लीफेंग को ये एजाज चीन पाकिस्तान दोस्ती को नई बुलंदी तक ले जाने और NDRC के सरबराह की हैसियत से पाकिस्तान की वजारत मनसूबाबंदी के साथ मिलकर सी पैक के तहत तवानाई, मवासलात और दीगर शोबों में मनसूबों को अमली जामा पहनाने में किरदार अदा करने के एतराफ़
इतराफ में दिया गया। ही लीफेंग चीन के सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे, नायब वज़ीर-ए-आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन भी हैं। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों की हर आजमाइश पर पूरी उतरने वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद वुसअत देने और नई राहें तलाश करने के अज़म की आकासी करता है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन समेत मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लीफेंग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल के शोबों में ताउन को वुसअत देने का ख्वाह है। इक़्तिसादी राहदारी का जिक्र करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि यह मनसूबा खित्ते में खुशहाली लाने के साथ पाकिस्तान के माशी मंजरनामे को भी बदल देगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के मालियाती ताउन और मसला कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CPEC से पाकिस्तान के समाजी, इक़्तिसादी और बुनियादी ढांचे के मंजरनामे में अहम तब्दीली आई है और अब ये पूरे खित्ते की इक़्तिसादी, तिजारती और राबताकारी की हैसियत को मज़ीद बढ़ाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने बाजोड़ में JUI कन्वेंशन हमले और जानी नुकसान पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस अंदोनाक वाक़े पर पूरी कौम अश्कबार है। ये वाक़या जमहूरियत पर हमला है। दुआ गो है कि अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारान को जल्द निशानदही करके उन्हें कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, मौलाना असद महमूद, खुरम दस्तगीर खान, सरदार इसरार तरीन, डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और MNA अब्दुल अकबर चित्राली भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री आइन में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजू तरीन उम्मीदवार के लिए हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से रहनुमाई हासिल करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मीडिया के बाज़ हिस्सों में शाया होने वाली रिपोर्ट्स और क़यास आराइयों के बरक्स वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी उम्मीदवार को मुंतखब या मुस्तरद नहीं किया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मिलकर फैसला करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं चीन और दोस्त मुल्कों के ताउन से पाकिस्तान मुश्किल दौर से निकल आया है। बेल्ट एंड रोड और CPEC खित्ते और दुनिया का माशी मुस्तक़बिल है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की शाख खोलने के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि हम चीनी हुकूमत और बैंक ऑफ चाइना के मशकूर है जिन्होंने मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि CPEC के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने और तवानाई बहरान पर काबू पाने में चीन ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ चाइना और दूसरे मालियाती इदारों के इश्तिराक से तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। ये एक हिस्टोरिक दिन है। इन सब ने पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन की है। मैं समझता हूँ कि हम जितने इनका शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारे साथ खड़े हुए। तो ये जो ब्रांच है ये बड़ी एक अच्छी खुशैन डेवलपमेंट है कि इन्होंने दूसरी ब्रांच खोली है और वो खुश हैं पाकिस्तान में बिज़नेस से और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी भी खुश है। तकरीब से खिताब करते हुए चीनी कमर्शियल काउंसलर ने कहा कि चीनी मालियाती इदारों ने CPEC की तरक्की में गैर मामूली किरदार अदा किया है। बैंक ऑफ चाइना के सदर ने अपने वर्चुअल पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। बैंक ऑफ चाइना के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि बैंक के क़याम से तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तकरीब के अख्तिताम पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक ऑफ चाइना को इस्लामाबाद ब्रांच के लिए लाइसेंस फराहम किया और बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से नेशनल लॉजिस्टिक सेल के DG मेजर जनरल फर्रुख शहजाद राव की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की और बरामदात और महासिल में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया।
वजीर खजाना को NLC के ऑपरेशनल उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर इसहाक डार ने कौमी तरक्की में नेशनल लॉजिस्टिक सेल के किरदार को सराहा। और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स 957 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। कारोबारी हफ्ते का आगाज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का बाइस बना, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुआशी तौर पर किए जाने वाले मुस्तहकम इक़दामात से 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ और 48,000 की नफसियाती हद भी स्टॉक मार्केट ने अबूर की। माहिरीन के मुताबिक CPEC मनसूबे के तहत मज़ीद मुआहदों पर दस्तखत और काबिल एतमाद दोस्त सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी आर्मको के साथ OGDC और PSO के मुआहदे के बराह रास्त असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ रहे हैं। चाइनीज़ के जो नंबर 2 आए चाइनीज़ PM के 6 मुआहदे और किए, इससे भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि अब यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ कर रहे हैं, अब हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो भी इस इन्वेस्टमेंट के साथ हाथ आगे बढ़ाएँ। कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 957 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 48,043 की सतह पर बंद हुआ, जबकि मार्केट में 1,94,000 से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ, जिनकी मालियत 17 अरब 88 करोड़ 49 लाख रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हजम 49 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा रहा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए की कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 289 रुपए 5 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त 292 रुपए 5 पैसे रही, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 286 रुपए पर आ गई है। सोने की कीमत में 2,500 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 2,22,200 रुपए पर आ गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,143 रुपए की कमी के बाद सोने की कीमत 1,90,501 रुपए पर आ गई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है, इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। फिर अपना यही इरादा है, इस मुल्क और कौम से वादा है, सरमाए की दौलत लाएंगे, खुशहाली के दिन दिखलाएंगे, निकलेगा मुल्क खसारे से, पहले भी करके दिखाया है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है, इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। एक सिमत मिली नौजवानों को, वो छूने लगे आसमानों को, दिया फिर से सहारा गरीबों को, मजदूरों और किसानों को, आफत में घिरे हम वतनों को भी गले से हमने लगाया है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मालियाती पॉलिसी का ऐलान करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि आने वाले महीनों में महंगाई में कमी मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 8.2 अरब डॉलर की सतह पर हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और तिजारती खसारे में कमी बाइस इत्मीनान है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई को 5% से 7% के दरमियान लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसी मकसद के लिए पॉलिसी रेट न बढ़ाने का फैसला किया है।
पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट कल इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इस शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करना है। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं पाकिस्तान में मादनियाती मिट्टी की कीमत $6.1 ट्रिलियन है। तफसील बताएंगे वक़ार हैदर। मादनियात की दुनिया में पाकिस्तान करने जा रहा है इनकलाबी इक़दामात। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं पाकिस्तान बेशुमार मादनियात से मालामाल है। मादनियात के इनकलाब से मुल्क में रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे, जबकि माइनिंग से सबसे ज्यादा फायदा गरीब आवाम को होगा। सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है पाकिस्तान की मादनियात, उनकी कीमत $6.1 ट्रिलियन। 3 हमारे गोल हैं इस नए मादनियाती रेवोल्यूशन के लिए। नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, गरीब के लिए मीडियम स्किल्ड लो स्किल्ड जॉब्स। नंबर 2 हमारी जो अपनी तरक्की है, जिसको हम कह रहे हैं मट्टी से तरक्की, उसका सफर। और नंबर 3 एक्सपोर्ट, कि हम बेचेंगे, हमें वो मेटल बेचनी आती है, हमें इंगेट्स एंड बिलेट्स बेचने आते हैं, हमें इंजन ब्लॉक्स बनाने आते हैं, हमें ब्रेक असेंबलीज बनानी आती, तो हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा हमने मादनियात के लिए 3 किस्म के लाहे अमल बनाए हैं। बताया कि बैरूनी सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सरमायाकारी करने में मदद फराहम की जाएगी। तमाम पाकिस्तान के अंदर कवानीन और लॉज और रेगुलेशन को जम करके एक पैकेज सिर्फ बनाएंगे। 3 स्टेप्स, हार्मोनाइज करेंगे तमाम रेगुलेटरी रिजीम्स को। नंबर 2 हाईएस्ट दुनिया के स्टैंडर्ड्स लेकर आएंगे हेल्थ एंड सेफ्टी और एनवायरनमेंट के। और नंबर 3 इसको डीरेगुलेशन की तरफ लेके जाएंगे। जैसे जैसे रेगुलेटर मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे उसको डीरेगुलेट करते जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। इस हवाले से SIFC का फ्रेम वर्क अपनाया जाएगा। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कुदरती मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। रैकेडिक में 5.87 अरब टन तांबे और 42 मिलियन औंस सोने के ज़खायर मौजूद हैं। रैकेडिक कान की उम्र 40 साल होगी और ऑन साइट प्रोसेसिंग से आला मयार का तांबा और सोना हासिल किया जाएगा। इसके अलावा सालाना 80 मिलियन टन खाम धात की प्रोसेसिंग भी की जा सकेगी। पाकिस्तान मिनरल कॉन्फ्रेंस से मुल्क के माइनिंग शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। पाकिस्तान की अहम मिनरल कंपनीज के सीनियर अफसरान की माइन और मिनरल की जानिब इनकलाबी इक़दामात पर इजहार राय आइए आपके साथ शेयर करते हैं। Reko Diq project holds the promise of becoming one of the world's largest copper and gold mines. Pakistan Minerals is a joint venture of OGDCL, Pakistan Petroleum and Government Holdings. Through this project, we aim to unlock Pakistan's mineral potential in a manner that will put our nation, particularly the province of Balochistan, on a path of long-term economic growth and social progress. Pakistan's mineral resources are not just plentiful, they're also pivotal to the global drive towards net zero emissions. With this in mind, we are embarking on an exciting journey to transform our mineral sector. To support this ambitious aim, we are convening a landmark mineral summit, which will be a gathering of global mining industry leaders. This summit will be an excellent opportunity for dialogue, for learning, and for fostering investment, both local and foreign, in our burgeoning mineral sector. जिस तरह अल्लाह ताला ने सरजमीन पाकिस्तान में बेशुमार कुदरती वसाइल अता किए हैं, इसी तरह पाकिस्तान में कुदरती मादनियात के भी वसी ज़खायर मौजूद हैं। अगर इन ज़खायर को प्रोफेशनली माइन किया जाए तो ये हमारे मुल्क के लिए एक सब्सटैंशियल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन सकते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इसी ज़ुमरे में हुकूमत पाकिस्तान ने SIFC के तहत पहली माइनिंग कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, जिसमें दुनिया भर से माइनिंग एक्सपर्ट्स, माइनिंग कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स, पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स और बिजनेस हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में माइनिंग रेवोल्यूशन लाने की बुनियाद बनेगी। हमारे प्रोविंस बलूचिस्तान से टेटियान बेल्ट गुजरता है, जिसमें प्रेशियस मेटल्स की मौजूदगी साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। इस इलाके की मादी तरक्की से पाकिस्तान को बिलुमूम और बिलखुसूस बलूचिस्तान को बहुत फायदा हो सकता है। इस सिलसिले में SIFC का किरदार बहुत ही लाजिम है। बोथ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि मिलकर लोकल एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसानियां पैदा करें। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग के दौरे के मौके पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया गया है। रिपोर्ट करेंगे अम्मा दीवान। पाकिस्तान को आजमाइश के हर दौर में जिस दोस्त मुल्क का हमेशा से साथ मिला है वो है पड़ोसी मुल्क चीन।
یہ چین ہی ہے جس نے دہشت گردی سے متاثرہ پاکستان کو ترقی کے سفر پر ہمیشہ ہم قدم رکھا۔ پاکستان میں چین کے نائب وزیر اعظم کے دورے کے دوران وفاقی دارالحکومت دلہن کی طرح سجا نظر آتا ہے۔ یہ گرم جوشی اور یہ محبت اس بے لوث دوستی کی مرہون منت ہے جس کے آگے بڑی سے بڑی آزمائش ریت کی دیوار نظر آتی ہے۔ چین کی پاکستان سے دو طرفہ تعلقات میں بے پایہ سنجیدگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ چینی قیادت پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔ چینی نائب وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے اور یہ روشنیاں بتا رہی ہیں کہ پاک چین دوستی کا مستقبل ہماری امیدوں سے زیادہ روشن ثابت ہوگا۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، 10 سال کے دوران سی پیک کے گیم چینجر منصوبے کے تحت اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ چین اقتصادی راہداری منصوبہ ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے جس کی بنیاد 2013 میں رکھی گئی۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور حکومت میں شروع کیے گئے اس منصوبے کا بنیادی مقصد پاکستان کے محل وقوع سے بھرپور فائدہ اٹھا کے ملک کو خطے کا تجارتی مرکز بنانا ہے۔ اس منصوبے کے تحت گوادر پورٹ سے بذریعہ زمینی راستہ وسطی ایشیائی ریاستوں کو بھی راہداری تجارت فراہم ہوگی۔ گزشتہ 10 سال میں پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی شراکت داری کے تاریخ ساز منصوبے کے تحت پاکستان میں تقریباً 50 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی اور چین پاکستان میں سب سے بڑا سرمایہ کار بن گیا۔ توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں ہونے والی اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں 11,000 میگا واٹ بجلی قومی نظام میں شامل ہوئی۔ ٹرانسمیشن لائنز میں 900 کلومیٹر کا اضافہ اور 500 کلومیٹر کے قریب نئی شاہراہوں کا جال بچھایا گیا۔ سی پیک کے تحت ملک کے طول و عرض میں قائم ہونے والے خصوصی اقتصادی زون سے اب تک 2 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے۔ رشاکئی، دھابیجی، علامہ اقبال، بوستان خصوصی اقتصادی زون سے صنعت، مینوفیکچرنگ اور فوڈ پروسیسنگ سمیت مختلف شعبوں میں نہ صرف سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی بلکہ چین سے بڑے پیمانے پر ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی ممکن ہوئی۔ چین کے صدر کے نمائندہ خصوصی اور نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سعودیہ کے نائب وزیر کانکنی Yes, thank you very much for bringing us and organizing this day. His Excellency has been always pushing us to come and study and invest, and now is the day to get together. Saudi Arabia and Pakistan relationship is a long-lasting, has been from the start, and it's growing every day. We have not only the diplomatic relationship, but also the brotherhood between Saudis and Pakistanis, and now we have all the established infrastructure for investment, and the mineral sector is to be we are looking at now. A time ago, we have celebrated signing the refinery, the refinery and petrochemical complex in Godar. Now, hopefully, we will see a similar bigger project or project in the mining sector. We are looking forward for a thriving, successful, and we are sure of that in the future Pakistan mining and mineral sector will be a successful one, and Saudi Arabia will help make it so. Well, I would just like to welcome my brother. As you guys know, we are on our way to bringing a silent economic revolution in Pakistan. And frankly, from my heart, if we need and would like to have one partner, that would be our brothers. We've had Saudi Arabia on our side at every difficult juncture,
And in terms of our progress, in terms of our development, we welcome our brothers, and it's like two brothers joining hand to build a country together. Today we had a discussion, we had a press talk in which we laid out the assets that we have. They're worth about $6.1 trillion. That's an enormous asset, but we cannot without, His Excellency has also led the world's largest company, Ma'aden, and he knows exactly what to do, how to create wealth from dust all the way to development. He's had that experience. He's led that company successfully, and that's one of the largest kind of smelting companies across the world. And I think we want to do the same. We want to take this dust and turn this into development. And I think the kind of assets that we have in place require enormous investments. And we are so happy that our brothers are arms in arms with us, shoulder to shoulder, inshallah, developing that. So we'd learn both in terms of, but even more importantly from his personal guidance in the experience that he's had in Saudi Arabia. That would be of an enormous asset for us. सऊदी अरब के नायब वज़ीर कानूनी खालिद सालेह अल मुज़फ़्फ़र इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तक़बाल किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब गहरे और बिरादराना ताल्लुक़ात रखते हैं और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को उन्होंने खुशामदीद भी कहा। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस के हेड क्वार्टर्स का संग बुनियाद रख दिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि मुसलसल काविशों से IPC आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम इदारे के तौर पर उभर कर सामने आया है। तफसील बताएंगी सदफ अफसर। IPC के मुस्तकिल हेडक्वार्टर के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर डुवार्टे पचीको को खुशामदीद कहते हुए कहा कि IPC ने 50 ममालिक के 193 अरकान पार्लियामेंट को एक नुक्ता नजर पर यकजा किया हुआ है और आलमी चैलेंजेस को डायलॉग के जरिए हल करने के लिए कोशां है। The Prime Minister's visionary leadership and commitment to the global harmony, prosperity and progress align perfectly with the objectives of the IPC. His steadfast backing and encouragement will undoubtedly catalyze the IPC's future endeavors as we continue our work in addressing key global challenges. वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आलमी चैलेंजेस, अमन और दरपेश मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। Prime Minister fully supports IPC vision and has assured his continued support for its cause. तकरीब से IPU के सदर डुवार्टे पचीको ने भी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की दुनिया भर में अमन के फरोग के लिए काविशें काबिल तहसीन हैं। If we work together, it will be possible to find global solutions to the global problems of our world. तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, सेनेटर्स और सफीरों ने शिरकत की। इससे पहले IPC के मुस्तकिल हेडक्वार्टर का संगे बुनियाद रखा गया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात भी हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और IPU के दरमियान बैनुल पार्लिमानी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और पार्लिमानी सफारतकारी के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। IPU के सदर ने सेनेट म्यूजियम का दौरा भी किया, जहाँ उन्हें पाकिस्तान के जमहूरी अमल और ऐवान बाला के इर्तकाई अमल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। IPU के वफ्द के एजाज में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने पार्लियामेंट हाउस में जोहराना भी दिया। IPC ताउन, मुकालमे और मुश्तरका जिम्मेदारी की आलमी अलामत के तौर पर उभर रहा है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसाक डार से बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर डुवार्टे पचीको ने इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस के नुमाइंदों के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अपनी तस्वीराती अहमियत के बायस तिजारत, तवानाई, सनती पैदावार और IT के शोबों में दीगर ममालिक के साथ तिजारत का ख्वाहिशमंद है। बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में चेयरमैन PTI का 342 का बयान कलम बंद न करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मुलजिम को कल दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन PTI अपनी लीगल टीम के हमरा जज हुमायूं दिलावर के रूबरू पेश हुए और 4 घंटे अदालत में गुजारने के बावजूद 35 सवालों में से किसी का भी जवाब न दे सके।
عدالت نے ملزم کا بیان قلم بند نہ کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فیصلے میں لکھا ہے کہ ایسی درخواستوں کا مقصد ٹرائل کو تاخیر کا شکار بنانا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے سینئر وکیل خواجہ حارث نے عدالت کو صرف مایوس کیا۔ کیس کی سماعت کل پھر ہوگی۔ معاون خصوصی عطادار نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ اپنی نوعیت کا واحد کیس ہے جو 11 ماہ سے زیر سماعت ہے اور ملزم راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم صرف 3 بار ہی عدالت میں پیش ہوا۔ اب بھی جب کیس اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، راہ فرار اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کے سوال کا کوئی جواب نہ دینا پڑے، یہ نہ بتانا پڑے کہ توشہ خانہ سے تحائف کیوں لیے تھے، یہ نہ بتانا پڑے کہ جو تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچ کے کروڑوں اربوں روپے کمائے وہ پیسہ کہاں گیا، یہ نہ بتانا پڑے کہ توشہ خانہ کے تحائف ڈکلیئر کیوں نہیں کیے، یہ نہ بتانا پڑے کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچ کے جو رقوم حاصل کی گئی تھی وہ رقوم جس اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی وہ تحفوں کی اصل قیمت کے ساتھ مطابقت کیوں نہیں رکھتی۔ خبر شامل کریں گے باجوڑ کے علاقے خار سے، جہاں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں جہاں بحق افراد کی تعداد 45 ہو گئی ہے جبکہ 100 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کی وجہ سے وزیراعظم کی ہدایت پر سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر کلچرل شو منسوخ کر دیا گیا۔ تفصیل بتائیں گے ساجد اختر۔ دھماکے کے 67 زخمی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال خار، ڈی ایچ کیو ہسپتال تیمرگرہ، LRH اور CMH پشاور میں زیر علاج ہیں۔ 50 معمولی زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد گھروں کو بھیجا جا چکا ہے۔ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ باجوڑ دھماکے میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان نے باجوڑ اور دیر لوئر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ہسپتالوں میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی۔ انہوں نے زخمیوں کو بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ باجوڑ میں نگران وزیر اعلیٰ نے قبائلی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہا کہ صوبائی حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے باجوڑ کا دورہ کرتے ہوئے خار ہسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی اور متاثرین سے افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ کور کمانڈر نے باجوڑ میں شہداء کے لواحقین سے بھی ملاقات کی اور ان کے بلند حوصلوں کو سراہا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع جموں میں ایک بے گناہ نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس نے نوجوان کو ضلع کے علاقے ارنیا میں محاصرہ تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ نوجوان کی شہادت کے بعد قابض فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر بڑے پیمانے پر آپریشن کیا اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے اعلیٰ تربیت یافتہ سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی کمانڈو بٹالین فار ریزولوٹ ایکشن کوبرا کو تعینات کر رہا ہے، جس سے مقبوضہ علاقے میں صورتحال معمول پر آنے کے مودی حکومت کے دعووں کی نفی ہوتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے تاکہ بھارت کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ اپنے مادری وطن پر اس کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر منسوخ کر کے مقبوضہ علاقے کا فوجی محاصرہ کر لیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں دفعہ 370 اور مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے نوکنڈی کی اگر بات کی جائے تو نوکنڈی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سبی میں 42، دالبندین 43، نورپور تھل 41، جبکہ سرگودا میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں بھی 36، کراچی 32، پشاور 37، جبکہ کوئٹہ میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔
ناروے کپ میں پاکستان سٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی سٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے اپنے دوسرے میچ میں ارول کلب کو 2-1 سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم کی جانب سے کپتان طفیل شنواری اور عبد الوہاب نے 1-1 گول کیا۔ اس کامیابی کے ساتھ قومی سٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے ناروے کپ کے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستانی گھوڑ سوار عثمان خان نے پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ عثمان خان نے آئرلینڈ میں ہونے والے ایکویسٹرین مقابلوں میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے کوالیفائنگ معیار حاصل کیا۔ عثمان خان نے اس سے قبل ٹوکیو اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کیا تھا، تاہم حادثے کی وجہ سے عثمان مقابلوں میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ عثمان خان اولمپک ایکویسٹرین کے لیے کوالیفائی کرنے والے واحد پاکستانی ہیں۔ انہوں نے ایشین گیمز کے لیے بھی کوالیفائی کیا تھا، تاہم پی ای ایف نے بروقت ایشین گیمز میں عثمان کی انٹری کنفرم نہیں کی۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔